Hi. Okay, 12:28 by my watch. I'm supposed to be here every day as per my promise, and here I am today. And let's see. So, as I am, on a mission with my backstory, and how backstory of 6 decades, mind you, it's a long time. Yes. So I feel I have to share. Let my lessons become somebody else's learnings, particularly those who are lower on the rung of age, those who have just turned adolescent, or those who have dreams in their eyes, or those who have aspirations but don't have the courage to do it. Yes, so I begin with Namaskar, the second day of Navratri today. Those who believe in it, doesn't matter. Uh, ओके, तो हमने शुरू की थी, आई ट्राई टू गो इन हिंदी। हमने शुरू किया था ये एक्सप्लोरेशन, ये डिस्कवरी अबाउट माई सेल्फ। इट्स अ फ्लैशबैक ऑफ माई 60 years threaded and trudged along. Yes, it was a kaleidoscope, it was a rainbow of many hues. There were dark days, there were white days, there were gray days, there were golden days, and there were silver days. That's the beauty of life. It has all the days. It is actually a kaleidoscope of colors. So, I was just telling you about how in my childhood I went to a convent despite the kind of conflict in the house. And I'm so thankful to my parents for taking the stand. And I've had most wonderful time in those schools I went to. And then I was blessed that I not only went to the same school, I even taught in Sofia for 12 long years. Okay, so it was actually, I know the philosophy, I know the thing, I know how it went, and I was there. And now that was a quirk of fate. It was not planned by me. During our days, we never planned our career. A few did, maybe the precocious ones who could think. And those days, I thought I can think about my career. I wanted to be an IAS. Okay. And that's how I chose my subjects. That's how I chose my streams. I was offered science, I was offered uh, subjects, but not knowing enough at that age, at my age, there was no counseling, there was no mentoring, there was no, as such, active guidance. So you lived with your dreams, right? And I thought I'll do that, and I stuck to the stream of arts and humanities, and I took arts and humanities. No regrets. I've had good time. At the end of the day, it doesn't matter. All the rivers fall into the ocean. Whatever stream you take, whatever career you take, I will give you not one, hundreds of examples जहाँ बच्चे IITs बने हैं, लेकिन वो राइटर्स बन गए. यू कैन थिंक ऑफ नेम्स. IITs थे, वो यूट्यूबर्स बन गए. IITs थे, उन्होंने चाय की शॉप्स खोली एंड दे मेड इट अ ब्रांड. Not one. There are hundreds of genuine case studies and stories. That's the beauty of life. So, I've been reflecting, क्या हमको एज पेरेंट्स एक्टिवली गाइड करना चाहिए? आई बिलीव करना चाहिए. व्हेन द चाइल्ड इज एट दैट एज, जब मैं 12th में थी, 9th में थी, सब्जेक्ट स्ट्रीम सिलेक्शन के दौर पे थी, उस प्लेटफॉर्म पे थी, ये लूँ ना लूँ, अगर उस समय थोड़ा सा गाइडेंस होता है, नज होता है, तो आप डिसीजन अवेयर होकर लेते हो. डिसीजन आपके ही होने चाहिए हमेशा, कभी भी अंडर फोर्स नहीं होना चाहिए, प्रोपल्शन नहीं होना चाहिए. Provided you have started discovering yourself, you started talking to yourself, you have started exploring your inner self. मैं क्या हूँ और मुझे क्या चाहिए. तो अगर आपने ये चीज़ पे, इस एंगल पे सोचना शुरू कर दिया, और अगर आपको थोड़ा सा प्रोपल्शन, थोड़ा सा गाइडेंस, थोड़ा सा हैंड होल्डिंग मिल जाता है, तो जर्नी इंटरेस्टिंग हो जाता है. उसमें से जो एक स्ट्रेस होता है, एक प्रेशर होता है, मुझे ये करना है, डिस्पाइट द रिवोल्ट, डिस्पाइट द रेबेलियन. अधिकांश रिबेलियन अपने आसपास से होता है, अपनी फैमिली से होता है. मे बी पेरेंट्स के आपके लिए अलग ड्रीम्स हैं. पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा कुछ काम करेगा, राइट?
तो पेरेंट्स के ड्रीम्स होते हैं, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे बेटे को डॉक्टर ही बनाना है, मैं इतना बड़ा आर्किटेक्ट हूँ, मुझे बच्चे को आर्किटेक्ट बनाना है, आई एम अ सीए, आई हैव एन एम्पायर हियर, हु विल टेक केयर ऑफ इट बट माय सन। तो अधिकांश हमको कई बार रिबेलियन जो है अपने आसपास मम्मी, पापा, बहन, भाई, सिबलिंग्स से ही मिलता है। Why? Because they care for you. Why? Because they want the best for you. Why? Because वो उस पर चले हैं, उनको सक्सेस मिली है। माइंड इट, हो सकता है वो जरूरी नहीं है आपको स्टॉप कर रहे हैं या रोक रहे हैं तो उनका कोई मैल इंटेंशन है। नो, when your family is around, your parents are around, believe me, your best counselors, your best guides। परंतु कई बार पेरेंट्स को जरूरत होती है देखने की, पहचानने की, अवेयर होने की। कई बार हम अपने प्यार में भी कैमोफ्लेज हो जाते हैं, कर्टन हो जाता है, प्यार कर्टन कर देता है और हम कुछ चीज़ें देख नहीं पाते। तो ऐसे में थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हेल्प करता है, जहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी हो, सब्जेक्टिविटी ना हो। तो वो आपको दिखाए कि नो, द चाइल्ड वांट्स दिस, द चाइल्ड हैज़ पैशन फॉर दिस, और कोई बात नहीं किसके घर कौन जन्म लेता है डज़न्ट मैटर। ऐसे ही तो इनोवेशंस होते हैं, ऐसे ही तो क्रिएटिविटी आती है, डज़न्ट मैटर। ओके, ज़रूर है अगर आप डॉक्टर के बच्चे हैं, डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर नहीं बनना चाहते, but because you have those things in your DNA that made your father become a doctor, made a brother become a doctor, your sister become a doctor, but maybe those things will help you in something else in your dream career। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती, कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं जाती। तो जब मुझे अब इस समय आके पता लगा है मुझे क्या करना है, क्यों करना है, तो आप लोग आज ये चीज़ थोड़ा जल्दी जान सकते हो, थोड़ा जल्दी पहचान सकते हो। देखो ज़िंदगी में यहाँ पे हमारी जो ब्रेथ है, वो तो लिखी हुई है। अब हमें कितने साल ब्रीथ करना है ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, जहाँ जिस बॉडी फॉर्म में हम आज हैं, जिस फैमिली में हम हैं, हमें नहीं पता। पर ग्रेजुअली जो मैं अपने आस-पास देख रही हूँ, आई एम लुकिंग एट माय मॉम, आई लुक्ड एट माय ग्रैंडमदर, आई लुक्ड एट माय पीपल अराउंड, दे ऑल लिव्ड लॉन्ग। लंबी उम्र के दिन आ गए हैं, मे बी बिकॉज ऑफ द मेडिकल फैसिलिटी, मे whatever द मोर्टेलिटी रेट हैज चेंज्ड अ लिटिल, राइट। तो अगर मान के चलते हैं हमारे पास इतने साल है, समय है, तो अगर आपको जल्दी चेतना आ जाती है, इफ यू गेट अवेयर अर्लियर, somewhere it helps you, the life becomes easy। See, those who make their life tough in the beginning lead an easy life later on, and those who lead an easy life early on, they have to lead tough life later on। ये तो बैलेंस है। आपको कुछ अच्छा मिलेगा, कुछ खराब मिलेगा, कुछ ऊंचा मिलेगा, कुछ नीचा मिलेगा। नंबर वन, इफ यू हैव लर्नड टू राइज अबव योर सिचुएशंस, टू राइज अबव योर सर्कमस्टेंसेस, और कहीं ना कहीं उससे जुड़कर भी उससे आप इतना जुड़ ना जाएँ कि व्यथित हो जाएँ, परेशान हो जाएँ, आपके मन में वो विक्टिमाइज़ेशन का बोध आ जाए, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरे को कोई हेल्प नहीं कर रहा, मेरा फैमिली ये, मेरे फ्रेंड्स वो, व्हाटएवर। तो कहीं न कहीं फिर ये ओवर जब हम करते हैं एक्सट्रीमिस्ट, तो ये हमारे जो पर्सनैलिटी है, हमारा बिहेवियर, उसमें ब्लेमिशेस ला देती है। तो हम हम कई बार व्यथित में देखती हूँ स्ट्रेस हम खुद क्रिएट करते हैं, बैल मुझे मार। there's not so much out there, पर हम तैयार हैं स्ट्रेस लेने के लिए। अरे ये करना है, वो करना है, इट्स ओके, रिलैक्स, कट योरसेल्फ सम स्लैक, बिकॉज वन थिंग आई विल टेल यू, जो लाइफ है, इट इज़ अ व्हील, और एक व्हील के कितने स्पोक्स होते हैं? बहुत सारे होते हैं, तभी वो व्हील बनता है और अच्छे से चलता है। तो जो हमारी ह्यूमन लाइफ है, इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, आपकी फैमिली है, आपके रिलेशनशिप्स हैं, आपका करियर है, ऑफ कोर्स आपकी वेल्थ है, आपका स्पिरिचुअलिज्म है, आपका कंट्रीब्यूशन है। क्या ये सब चीज़ों की तरफ आप गौर कर रहे हैं? ये डिपार्टमेंट्स नहीं है अलग-अलग लाइफ के। दे आर ऑल वन पार्ट ऑफ द बिगर होल ऑफ योर पर्सनैलिटी। तो कई बार हम क्या होते हैं, हम अनजाने में या मे बी जानकर भी हम अपनी एक चीज़ पर इतने केंद्रित हो जाते हैं, इतने फ़ोकस्ड हो जाते हैं कि बाकी टू द एनहाइलेशन ऑफ अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। हम इतने करियर माइंडेड हो जाते हैं कि हम गाना गाना भूल जाते हैं, एन्जॉय करना भूल जाते हैं, हॉबीज़ भूल जाते हैं। हम उसी में लग जाते हैं। नो ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय एंड जिल अ डल गर्ल। ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। करियर बहुत ज़रूरी है। इट मेक्स योर लाइफ ईज़ी, इट मेक्स योर लाइफ कंफर्टेबल, बट इस हद तक भी नहीं कि हम अपना सब कुछ ही भुला दें।
हंसना भूल जाएं, मुस्कुराना भूल जाएं, स्ट्रेस का एक बर्डन लेके चले। इनफैक्ट आई टेल यू, देयर आर सम पीपल आई हैव सीन इन माय लाइफ, रियल लाइफ, जहाँ पर एक्सपेक्ट किया जाता है अगर आप सीरियस हैं अपने करियर के लिए तो आप हमेशा चेहरे पर तनाव लेके घूम रहे हैं, स्ट्रेस लेके घूम रहे हैं, आप वही वही बात कर रहे हैं। अगर इफ यू आर कैजुअल अबाउट इट, इफ यू आर रिफ्लेक्टिंग इंट्रोवर्टिंग दैट एस्पेक्ट, आसपास वाले सोचते हैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, ये तो कुछ अपने करियर के लिए केयरफुल ही नहीं है, ये तो अपने करियर के लिए कुछ कर ही नहीं रहा, यूजलेस ब्लॉक। नो, हम सब अलग हैं। कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, कोई इंट्रोवर्ट होता है। जरूरी नहीं है मुझे बाहर जाके आपसे कहना है मेरे को ये करियर करना है, मुझे ये करना है, मैं ये कर रहा हूँ। हम अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं तो हम सब सचेत होते हैं। इवन बच्चे, इनफैक्ट जो मिलेनियल्स हैं, दे आर वंडरफुल। ये तो शायद पैदा ही इस चीज को लेके होते हैं, मुझे क्या करना है, और कहीं एक जगह टिकते नहीं है, मोस्ट अनस्टेबल। आज ये करना है, कल वो करना है। एक हमारा दौर था जब लॉयल्टी ऑफ सर्विस होती थी, 30 साल, 40 साल, 50 साल एक जगह पे निकाले जाते थे और पीठ ठोकी जाती थी सीधा लॉयल्टी। और नया जमाना क्या है, अगर आप ज्यादा रुक गए, समथिंग इज रॉन्ग। आप तो ग्रोथ ही नहीं चाहते, आप तो बस एक ही जगह टिके हुए हैं। सो यू सी, द सोसाइटी इवॉल्व्स एंड थिंग्स ही बदल जाती हैं, सोच के मायने बदल जाते हैं। तो ये एवोल्यूशन जब आई स्टडी, इट ब्रिंग्स अ स्माइल टू माय फेस। आई शेयर वन मोर थिंग। जब हम छोटे होते थे तो अगर कोई ट्यूशन के लिए जाता था तो बड़ी शर्म की बात होती थी, इट वाज एम्बैरेसिंग। हमारा बच्चा ट्यूशन जाता है, आई एम टॉकिंग ऑफ व्हेन आई वाज इन 6th 7th 8th, ट्यूशन जाता है हमारा बच्चा। तो छुपाते थे पेरेंट्स, बताते नहीं थे ना स्कूल में ना घर में। स्कूल वाले तो ऐसे ही बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते थे, स्कूल की टीचर फेवर करेगी, स्कूल की टीचर करेगी। मैंने केसेस भी देखे हैं, होता भी है, बिकॉज सारे ह्यूमन बींग्स एक से नहीं होते, है ना। तो डजेंट मैटर, आई हैव मोर स्टोरीज सम अदर टाइम। तो क्या होता है कि, लेकिन आज सिनारियो बिल्कुल उल्टा है। आज अगर ट्यूशन नहीं जाते तो कॉलर अप ही नहीं है। आज तो ब्रांड ढूंढते हैं ट्यूशन का, पैसे ज्यादा देंगे, अच्छे ब्रांड में भेजेंगे और क्लास में जाएंगे, अरे मैं फलानी जगह कोचिंग जाता हूँ, मैं फलानी जगह ट्यूशन जाता हूँ। जस्ट रिफ्लेक्ट, ये सच है ना। हमको जरूरी हो गया आज बच्चों को कोचिंग भेजना, तो अगर कोचिंग नहीं भेज रहे तो बहुत बड़ी बात है। I never ever took any coaching in my life, and I excelled. I was irrefutable first ranker in my class. कभी कोचिंग नहीं ली, सोचा भी नहीं, सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टार्ट। तो आज भी ये जायज है, आज भी ये पॉसिबल है। इनफैक्ट आई एम सजेस्टिंग, अगर आप आत्मनिर्भरता सीखना चाहते हैं, नथिंग लाइक दिस टू स्टार्ट। आप मेंटरिंग लीजिए, काउंसलिंग कीजिए, कोचिंग लीजिए, परंतु इस हद तक अपाहिज ना हो जाए, इस हद तक डिपेंडेंट ना हो कि अगर कोचिंग नहीं होगी तो हम स्कूल ही नहीं जाएंगे। एक पैरेलल स्ट्रीम है, इधर कोचिंग चलती है, उधर स्कूल लाइफ चलती है। अंडरस्टूड है। बच्चा घर आएगा, बैग रखेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड ट्यूशन पे जाएगा। ट्यूशन से आएगा, देयर इज नो टाइम लेफ्ट फॉर हॉबीज एंड प्ले। बच्चों की चाइल्डहुड ही कहीं चली गई है। और जो हॉबीज हैं वो भी सारी स्ट्रक्चर्ड हैं, प्लान्ड हैं, मनूवर्ड हैं। बच्चे को ये सिखाना है क्योंकि इट्स इन थिंग, बच्चे को वो कराना है बिकॉज इट्स द ब्रांड थिंग। व्हाट्स रॉन्ग? जियो और जीने दो। अगर बच्चे को रुचि आ रही है, 100% जाइए। नहीं आ रही है तो फोर्स नहीं कीजिए, ऑफ कोर्स गाइड कीजिए, इग्नाइट कीजिए, मोटिवेट कीजिए। बिकॉज एक्चुअली वैरायटी से जिंदगी इंटरेस्टिंग हो जाती है। वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। ये ईडियम बाद में समझ में आता है, जब छोटे होके बोलते हैं। बहुत सारे ईडियम्स ही नहीं मुझे समझ आते थे, आज कितने ईडियम्स, बिकॉज यू सी देम इम्प्लीमेंटेड इन योर लाइफ एंड यू अंडरस्टैंड। मुझे सबसे बढ़िया समझ में आता है, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। तब मैं सोचती थी क्या स्टूपिड ईडियम बनाया है, हाउ कैन क्यूरियोसिटी किल द कैट। ये भी कोई ईडियम हुआ? इतना स्टूपिड ईडियम है। आज मुझे समझ आता है ये क्यों होता है और कैसे होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो क्लीशेज आ रहे हैं हमारे पास, ये जो फ्रेजेस बने हैं, इनमें कहीं ना कहीं कुछ सैप है, इनमें कुछ ना कुछ है दम, तभी किसी ने इसको कॉइन किया। ओके, किसी ने जिंदगी को बहुत बारीकी से देखा, उस पर मनन किया, और कितने राइटर्स बैठे हैं हमारे पास, पेन के राजा, जो हमारे तक ये चीजें पहुंची। और ये बहुत पहले से चला आ रहा है, आज नहीं तब भी था। हमारे जो इंटायर माइथोलॉजी है, जो वेदास हैं, तब भी लिखित होता था, राइट। अगर वो सब नहीं होता तो हम उसको टैप कैसे करते और आगे वाली जनरेशन तक वो कैसे पहुंचाते। ये तो सोना चांदी है, असली दौलत तो, वेल्थ तो यही है, राइट।
जो शब्दों में बुने हुए हैं, जो शब्दों में पिरोए हुए हैं, राइट? तो अब मैं आपको बता रही थी कि आप आज का जो मेरा मेन मुद्दा है, आप अपना ड्रीम करियर विदाउट स्ट्रेस और बर्नआउट कैसे अचीव कर सकते हैं। तो मेरा एक सिस्टम है 3 CP, ये मेरा ब्लूप्रिंट है, ये मेरा फ्रेमवर्क है। 3 C's और 3 P's। तो आप एक साथ 6 पर ना जाएँ, वन एट अ टाइम उठाएँ और उसको उतारें अपने आप में, अपने जीवन में। उसके उसको ट्राई करें। बिलीव मी, इट विल हेल्प यू। And the younger, the better. You guys are lucky. You have time on your hands. You're thinking well ahead of the time. Imagine the wonderful years you will live if you live to be 100 years or 90 years or 101 years. I'm aajkal. Okay, I am here, 60. I'm still thinking of going long and strong. Doesn't matter. We are here. Okay. तो इस 3 CP क्या है? 3 CPs, number 1 C is clarity. अगर आपको ये क्लैरिटी आ जाती है, मेरा वॉट क्या है और वो वाई है, मुझे क्या करना है और वो क्यों करना है, ये बहुत अहम क्वेश्चंस हैं, व्हाट एंड व्हाई, जिसको मैंने कल रेज किया था। आज हम उस पर थोड़ा और ड्वेल कर लेते हैं। तो अगर आपको इस चीज़ की क्लैरिटी आ जाती है, नेवर माइंड जिसको नहीं है, डोंट वरी, डोंट वरी। हर चीज़ का एक समय होता है। जब समय आता है, कुछ चीज़ें आपको कुछ एज से बाय डिफ़ॉल्ट समझ आती हैं। कुछ चीज़ें आपको समय से बाय डिफ़ॉल्ट समझ आती हैं, आपको प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कर सकते हैं, प्रेरित हैं एंड आपको आंसर्स मिल रहे हैं, नथिंग लाइक इट, नथिंग लाइक इट। द सूनर द बेटर। इट कट्स द स्ट्रगल, इट कट्स द स्ट्रगल टू अ लॉन्ग एक्सटेंट। आई हैव सीन people going to their 40s 50s and still wondering क्या करना है, क्या करना है, क्यों करना है। नेवर माइंड, जब जागे तब सवेरा। जब ये भ्रांति हट जाए, जब ये क्लैरिटी आ जाए, इट इज वर्थ इट। ओके, तो नंबर 1 हो गया क्लैरिटी। तो आप कोशिश करिए, अगर ये मेरा गोल है, अगर ये मैं करियर करना चाहता हूँ, तो मैं ये क्यों करना चाहता हूँ। रिसर्च करो। आज मीडिया है आपके पास, कितना रिसोर्सेज है ऑनलाइन। तो आप जो ऑनलाइन बैठ के सारा दिन सोशल मीडिया करते हैं, उसको पर्पसफुल बनाइए, उसे प्रोडक्टिव बनाइए और अपने सवालों के जवाब ढूंढिए, राइट एंगल से, राइट प्लेटफॉर्म से, राइट लोगों से, राइट एनवायरमेंट से। सचेत रहिए उसके लिए। कई बार तो नींद में थिंग्स आर गोइंग ऑन एंड योर सबकॉन्शियस इज रिकॉर्डिंग दैट। कहीं कहीं आप इधर बैठे हैं, दूसरी जगह चर्चा हो रही है, योर माइंड इज रिकॉर्डिंग दैट। एंड ज्ञान जहाँ मिले वहीं से बहुत अच्छा है। अगर आपको आंसर्स मिल रहे हैं तो व्हाई नॉट गेट इट फ्रॉम वेयर। एक बहुत अच्छा दोहा था, आई कैन नॉट रिकॉल दैट दोहा, कि ज्ञान जहाँ से भी मिले, कितनी निम्न ऊंची बड़ी जगह से मिले, ज्ञान इज ज्ञान, टेक इट फ्रॉम वेयर एवर यू गेट इट। ओके, तो नंबर 1 इज क्लैरिटी। कोशिश करिए कि ये जो बादल हैं, किसके, अनसर्टेनिटी के, डिलेमास के, डाउट्स के, कंफ्यूजन के, ये कोशिश करिए हटाएं और उसके लिए प्रेरित रहें। और ना जाने किस राह में कौन तुमको एंजल मिल जाए जो तुम्हें रास्ता दिखा दे। डजंट मैटर, आप सचेत रहिए। नंबर 2, कन्विक्शन। अगर आपको क्लैरिटी आना शुरू हो जाती है और आप उस पर पत्सर हैं, आप उस पर अग्रसर हैं, यू आर ऑन द वे टू इट, यू आर वर्किंग ऑन इट, देन कन्विक्शन। तो फिर आप अपने विचारों पर, अपने गोल्स पर, पर्टिकुलरली अपने ड्रीम्स पर कन्विक्शन रखिए। बिलीव मी चिल्ड्रन, बिलीव मी पेरेंट्स, ड्रीम ड्रीम। हर साइंस की एक हकीकत, जो साइफाई आप कॉमिक्स पढ़ते थे, आज वो सब हकीकत है। हम जब छोटे थे, हमने सुना था अमेरिका में ऐसे रेडियो हैं जिसमें फोटो दिखती है। आई हर्ड दिस एंड आई सॉ इट। यस, टीवी केम टू इंडिया इन 70s, अर्ली 70s। ओलंपिक्स थे तो हमारे घर में पहली बार टीवी आया था। आई रिकॉल इट। तो वो टीवी क्या है, वो रेडियो तो है जिसमें फोटो दिखती है। तो जो हम, आई हैव सीन दैट एज, आई हैव सीन दैट फोन ऑल्सो, जो हम उठाकर फोन करते थे, ऑपरेटर से बुक करते थे, वेट करते थे, हमारी एसटीडी कॉल लग रही है जी, कॉल आएगी, और एक एक मिनट का पैसा होता था, जल्दी जल्दी बात करनी है। आई हैव सीन दोज डेज, बिलीव मी चिल्ड्रन, दोज हु आर बॉर्न टू दिस मोबाइल एज, आप कंटेम्पलेट ही नहीं कर सकते ये मैं क्या बोल रही हूँ। आज आपके हाथ में मोबाइल है, आप एक एक सेकंड की
फोटो बात ही नहीं, लाइव भेजते हो अपने पेरेंट्स को। आप बाहर पढ़ रहे हो, इधर पढ़ रहे हो, उधर पढ़ रहे हो। आज एब्सेंस नहीं है। आज हम एक दूसरे की जिंदगी में 24 घंटे हैं, चाहे फिजिकली प्रेजेंट हैं या नहीं हैं, वर्चुअली हम हर एक की जिंदगी में हमेशा हैं ना। यू हैव टू टेक अ कॉल, कहाँ बाउंड्रीज लगानी है, कहाँ फुल स्टॉप्स लगाने हैं, कहाँ कॉमर्स लगाने हैं। आई बिलीव दैट मे बी आई वॉज लकी देन कि इतना डिस्ट्रैक्शन नहीं था, डाइवर्जन नहीं था। मे बी आई कुड कॉन्सेंट्रेट एंड देयर वॉज मोर ऑफ इनर एक्सप्लोरेशन। नेवर माइंड, नोइंग इज, नॉलेज इज पावर। आपको दिख रहा है ये डिस्ट्रैक्शन बन सकता है, ये डिस्ट्रैक्शन का कारण हो सकता है, तो यस, सोचिए, सचेत हो जाइए, अवेयर हो जाइए एंड देन टेक केयर ऑफ इट। तो पहला हो गया आपका क्लैरिटी, दूसरा हो गया आपका कन्विक्शन, तीसरा हो गया कॉन्फिडेंस। जब आपको शुरू से क्लैरिटी आती है, जब आपको शुरू से कन्विक्शन आने लग जाती है, डोंट यू थिंक इट्स 100% कन्विक्शन एंड कॉन्फिडेंस टू यू? तो आप हमेशा डरे नहीं रहेंगे, टिमिड नहीं रहेंगे, चिकन नहीं रहेंगे। इनफैक्ट कॉन्फिडेंस के और भी बहुत सारे मायने होते हैं। डिस्पाइट दीज क्लैरिटीज आई हैव सीन चिल्ड्रन not having faith in their own abilities, not knowing their own self, not having faith in their potential. Never mind, it's okay, confidence की है, परंतु somewhere it comes closer, you come closer it. We talk about 3 P's now. Quickly, I finish it, my time is drawing to a close. Number 1 है passion. जब ये तीनों चीजें आ जाती हैं हमारे अंदर, अगर हम पैशन नहीं लाते, अगर हम इंथ्यूजियाज्म नहीं लाते, तो इट्स बिलीव मी अ डल थिंग टू पार्टेक, इट्स अ होपलेस थिंग टू ईट। अगर आपके सामने कोई डिश है, उसमें क्रिस्पीनेस नहीं है, उसमें सेवर नहीं है, उसके अंदर वो खुशबू एंड सिजलिंग इफेक्ट नहीं है, तो खाने में मजा ही नहीं आता। तो आपकी लाइफ का मेटाफर अगर हम लेते हैं, अगर उसमें आपका इंथ्यूजियाज्म नहीं है, जज्बा नहीं है, जोश नहीं है, जान नहीं है, तो बिलीव मी इट्स सो बोरिंग। ऐसे करियर को क्या करना जहाँ पैशन ही ना है? तो पैशन ढूंढो। हो सकता है आपका एक नहीं 2 पैशन हो। मेरे साथ ही बहुत तकलीफ हुई थी, मुझे समझ ही नहीं आता था, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। There were so many things to do. I was spoiled for choice. I was bewildered by choice. I was stopped by the choice. तो कई बार ये ब्लेसिंग भी आपके लिए अभिशाप बन जाती है। तो क्या होता है कि जब आप में पैशन आता है, तो ज़िंदगी में फन आता है और ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। नेक्स्ट आता है आपके प्रिंसिपल्स। आपने सोचा ये प्रिंसिपल्स की बात क्या है, मैं इस पे कल डिटेल में चर्चा करूँगी, आज हमारा समय मुझे कह रहा है, आई डोंट हैव मच टाइम। व्हाट डू आई मीन बाय प्रिंसिपल्स? आई टेक इट फर्दर। प्रिंसिपल्स होता है वैल्यूज़। क्या आपने अपने इस पर्सनालिटी को, इस बॉडी को जो हम लेके ब्लेस हुए हैं ऊपर वाले से, कोई वैल्यू सिस्टम दिया है? कोई प्रिंसिपल्स दिए हैं जीने के लिए? नहीं तो आप क्या हैं? आप आप बहते तिनके की तरह हैं, जहाँ वेग पानी ले जाएगा चले जाएँगे, जहाँ हवा ले जाएगी चले जाएँगे। आपको आपका वैल्यू सेट करना चाहिए। मे बी आई टेक वेबिनार्स ऑन ऑल दीज एंड विल टेक 1 पॉइंट ईच। सिर्फ क्लैरिटी पे बात करेंगे पूरा दिन, सिर्फ कन्विक्शन पे बात करेंगे, सिर्फ कॉन्फिडेंस पे बात करेंगे, सिर्फ पैशन पे। देयर सो मच टू टॉक एंड हियर अबाउट इट। एंड नेक्स्ट हम सिर्फ प्रिंसिपल्स पे बात करेंगे। ये बहुत बड़ी गहरी चर्चा का विषय है। एंड नेक्स्ट इज अ पर्पस। तो पर्पस कहीं ना कहीं क्लैरिटी से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं वो आपको पर्पस दे देगा। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट साउंडिंग इन द टाइम दैट आई हैव इन हैंड, पर्पस कभी भी सिर्फ मेरे लिए या आपके लिए नहीं होना चाहिए। बाहें फैलाएं तो जमाना अपना है। पर्पस शुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम गिविंग टू समबडी, फ्रॉम सर्विंग समबडी, फ्रॉम कंट्रीब्यूटिंग। अपने बच्चे तो जीव जंतु भी पालते हैं, कीड़े मकोड़े भी पालते हैं, बर्ड्स एंड बीज भी पालते हैं, राइट? अगर हम कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ अपने से बाहर करके करते हैं, उसको पर्पस को हमारे उसका समावेश करते हैं पर्पस में, उसको उसका हिस्सा बना लेते हैं, तो यू सी जिंदगी का आनंद। ट्राई एंड सी, यू नो, आई हैड अटेंडेड अ कैंप, अ शिव योग कैंप, एंड स्वामी जी क्या कहते थे, 3 S: सेवा, सत्संग, सेवा सत्संग एंड मैं तीसरा S भूल रही हूँ। सो ही हैड एक्चुअली टोल्ड अस, सेवा में जो खुशी है, और ये आप कहीं भी पढ़ लीजिए, आप ट्राई करिए। इफ यू आर नॉट हैप्पी, इफ यू आर डिप्रेस्ड,
If you think that you don't find any happiness, everybody is enjoying life except you don't know what to do, start serving. Take an animal, take a pet. गिविंगनेस, आप अपने आप को भूल के उसकी सेवा करते हो। कुत्ता पाला है, बिल्ली पाली है, बर्ड पाला है, यू सो मच अवेयर ऑफ इट एंड यू नो वो म्यूट है, वो बोल नहीं सकता, यू ट्राई एंड हेल्प समवे, यू आर डूइंग समथिंग, राइट? किसी भी तरह की कोई कंट्रीब्यूशन, कुछ सेवा कीजिए। इफ नॉट, सेवा के बहुत मायने हैं, इट्स नॉट जस्ट मनी, इट्स योर टाइम। कोई घर में बुजुर्ग है, जाके उससे 10 मिनट बात कीजिए, सेवा है। ऑल ओल्ड पीपल हु वांट टू बी फेल्ट नीडेड, दे वांट टू टॉक इट आउट, go do some service, go to old age home, talk out with old people. ओके आप समय की सेवा कर सकते हैं, पैसे की सेवा कर सकते हैं, एनर्जी की सेवा कर सकते हैं। आप कुछ कर सकते हैं तो शारीरिक रूप से हेल्प करके आइए, पर कुछ तो कीजिए। नॉट जस्ट फॉर योर सेल्फ, फॉर माई सेल्फ, माई फैमिली। गेट आउट ऑफ दैट जोन ऑफ मी, माई माइंड. Let's think of Vasudev Kutumbakam, at least in the iota, nano part of our life. एंड ग्रेजुअली वो ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक पावर है, वो छोटे से बड़ा होता जाएगा, एंड दैट विल बी फन. ठीक है, ये चीज़ मुझे अब समझ आने लगी है, ये चीज़ें मुझे अब दिखने लगी हैं. जब मैं छोटी थी तो शायद इन चीज़ों से अछूती थी, अनभिज्ञ थी, अपने में ही जुड़ी रहती थी. नेवर माइंड, जब जागे तब सवेरा. सो आई एम ड्रॉइंग टू अ क्लोज, एंड यस, आई डू अर्ज यू, I do implore you, do comment. And if there is any of these C's or P's with you and you've discovered it, wonderful, share it with me. Don't forget to put hashtag live or hashtag replay. And it will be fun to dwelling on what's happening in your life. Right? So my backstory to your backstory. It will be fun. I'll see you again tomorrow, same time here. Have a wonderful day. Have a wonderful life.